I think it's an embarrassment to their families. You want to know the truth? The two of them. Yeah. Specifically on that $2,000 tariff check. Mr. President, I didn't call you. You didn't call me? yeah, Mr. President, to be clear, do you believe at the end of implementing these new tariff tools, the tariff rate and tariffs will ultimately be higher than they currently are? Potentially higher. How much higher? It depends, whatever we want them to be. But we want them to be fair for other countries. And, you know, we have some countries that have treated us really badly for years. And it's going to be high for them. And we have other countries that have been very good. And it's going to be very reasonable for them. Yeah. So specifically on the tariffs question, I mean on the $2,000. I didn't call you. Mr. President, thank you, Mr. President. Do you have any plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic. And we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped a war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. That's and I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff, each country. And they called up and they said, we have made peace. Okay? I just want to thank you all. Look, great certainty has been brought back to the economy of the United States and actually the economy of the world, because we generate so much in the world. We're the biggest in the world, and we're now the strongest by far. We were a country that was dead 1.5 years ago. Now we have the hottest country in the world. We're going to keep it that way. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Did you say 32? कि यह है कि ट्रंप ने निराशा व्यक्त की है, लेकिन भारत के साथ रिश्तों पर बोले हैं कि टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कहा है कि हमारी ट्रेड डील, व्यापार समझौता हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तारीफ की कि वो अच्छे मित्र हैं और भारत के साथ हमारे रिश्ते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रेड डील हमारी चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट पर बरसे हैं। सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने यहाँ कही है और ये कहा है कि दूसरे विकल्प भी हमारे पास हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रणय, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो अभी टैरिफ लग चुका है वो खत्म होगा या नहीं? देखिए, जहां तक भारत और अमेरिका के बीच में 18% के टैरिफ की जो डील हुई थी, अब उसके ऊपर 10% अधिक टैरिफ जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के सभी देशों के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये जो 10% टैरिफ है, ये जो अमेरिका का टैरिफ एक्ट 1974 है, उसके सेक्शन 122 जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, उसके तहत उन्होंने लगाने का फैसला किया है। यानी अतिरिक्त 10% टैरिफ का भार यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। नहीं, इसको फिर से समझाइए प्रणय, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो टैरिफ ऑलरेडी 18% हमारे ऊपर है, उस पर 10% और लगेगा। देखिए, अभी इस पे स्पष्टता का इंतजार है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आज पूरी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश थे, से खफा थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी विकल्प हैं। उन्होंने जस्टिस कैवेनाग की तरफ से जो विकल्प सुझाए गए हैं उनका जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये बताइए, हम समझना ये यहाँ पर ये चाहते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो इन टैरिफ को जो दुनिया भर के देशों पर लगाया उसे गलत बताया है, गैर कानूनी बताया है, राष्ट्रपति के अधिकार के बाहर बताया है, तो क्या वो रद्द हो जाता है या ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम 10% और लगा दूंगा?
इसका मतलब क्या हुआ? सही मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल मसला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ओपिनियन आया है, मेजॉरिटी ओपिनियन, उसमें नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो IEEPA जो है, यानी अपने जो इमरजेंसी पावर्स हैं, उन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो टैरिफ लगाया है वो रास्ता गलत है, उसके आधार पर वो टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। अगर टैरिफ लगाना है तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस को उसका अनुमोदन करना होगा और अमेरिकी कांग्रेस के माध्यम से ही वो लगा सकते हैं। लेकिन जस्टिस कैवेनगॉ जो हैं, बैरेट कैवेनगॉ, उन्होंने अपना जो डिसेंट नोट दिया है, असहमति जो जताई है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के पास कई अधिकार ऐसे हैं जिनके तहत वो टैरिफ लगा सकते हैं, और उसकी सूची के अंदर यूएस टैरिफ एक्ट 1974 है, जिसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इसका इस्तेमाल करते हुए 10% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर रहा हूं। यह 150 दिन के लिए होगा। अब 150 दिन के बाद क्या होगा? क्या अमेरिकी कांग्रेस के अंदर उसे रेटिफाई करवाना होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहां भी सरकार ऑर्डिनेंस लेके आती है और ऑर्डिनेंस को फिर 6 महीने के भीतर रिपील करना होता है। उसी तरीके से यहां पर भी ये 10% का जो टैरिफ है, ये फिलहाल 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए तो लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो लिंडसे ग्राहम का बिल है उसको पुश करते हुए नजर आएंगे, जिसके माध्यम से इसको लीगली इंप्लीमेंट किया जा सके? तो देखिए, इसके अंदर घरेलू राजनीति भी है अमेरिका की, जिसके अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, विदेशी हितों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन जहां तक टैरिफ का सवाल है, अगर हम बात करें कि जो 18% की टैरिफ की डील हुई थी उस पर क्या अंतर हुआ, या भारत के ऊपर क्या अतिरिक्त टैरिफ लगने जा रहा है, तो अभी अगर आप आज के बयान को देखें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, उन बयानों के आधार पर तो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कागज में देखना होगा कि नोटिफाई क्या किया जाता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया है, अपना प्यारा मित्र बताया है, अच्छा मित्र बताया है, लेकिन सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टैरिफ पर हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं और फैसले से जो लोग खुश हो रहे हैं वो ज्यादा दिन तक खुश नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि हम और ज्यादा पैसा वसूलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निराशाजनक बताया है, हतोत्साहित करने वाला बताया है, लेकिन यह कहा है भारत के साथ रिश्तों को लेकर ट्रंप बोले हैं कि हमारी भारत के साथ ट्रेड डील चल रही है, वो ट्रेड डील जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने नहीं झुकने की बात भी कह दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के साथ तो रिश्ते चलते रहेंगे, लेकिन अमेरिका के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाना चाहते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं। प्रणय, आप हमें ये समझाइए कि इस सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ट्रंप पर क्या असर हुआ है? क्या टैरिफ खत्म हो सकता है दुनिया भर के देशों पर? देखिए, टैरिफ खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि टैरिफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहला बड़ा मैसेज ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भला ही उनके टैरिफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाते हुए उसे खारिज करने की कोशिश की हो, लेकिन वो अपनी टैरिफ की पॉलिसी पर अडिग हैं। यानी वो टैरिफ घटाने नहीं जा रहे हैं, टैरिफ खत्म नहीं करने जा रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या हुआ प्रणय? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा अमेरिका के कि जिस कानूनी आधार पर उन्होंने टैरिफ लगाया था, यानी जो इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IEEPA एक्ट के तहत में, जो इमरजेंसी पावर एक्ट्स होते हैं राष्ट्रपति के, उसके तहत टैरिफ लगाया था, उस आधार पर वो टैरिफ नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही मामला था, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था, लोअर कोर्ट ने पहले खारिज किया था और अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। तो ये तो हुआ कानूनी आधार। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर? उन्होंने साफ कर दिया है कि ये अमेरिका के हितों के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा है कि मैं टैरिफ की पॉलिसी में बदलाव नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि मैं टैरिफ और लगाने जा रहा हूं। हाँ, जी, यही हम समझना चाह रहे हैं। आपने IEEPA का उल्लेख किया, तो क्या ये जो टैरिफ अभी तक लगा है ये IEEPA के एक्ट के तहत ही लगाया गया है? और अगर ट्रंप ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, तो इसको हम कैसे समझें?